If you are still reluctant to admit the fact that the process of writing while we're listening or at the time of listening is truly effective, even after I tried every possible way to get you through with two of my previous videos in Hindi English version or format or whichever the term you call it, the adequate amount of opportunities and advantages that means the process of writing gives, or rather offers you in return, then the idiomatic expression on the board is for you. Rajat, well, let me introduce the expression of the day to you. And here it is: good for the soul, good for the soul. Hello, everybody. I'm Dev Chatterjee, welcoming all to my channel, Practical English. अगर आप इस विषय को स्वीकार करने में अनिच्छुक हो कि सुनने के साथ साथ लिखने की जो प्रायोगिक प्रयास है ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही परिणाम सिद्धकारी एक प्रयास है, तो ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आपके लिए है. And what does this idiomatic expression, by the way, mean? It's an idiomatic expression meaning good for you, even it seems unpleasant. तो आपको ये अप्रिय लग सकते हैं, अप्रीतिकर ये हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके हित में है. ये आपके लिए हितकारी सिद्ध हो सकते हैं अगर आप अपने आप से वचनबद्ध हो कि सुनने के साथ साथ लिखने के जो प्रयास है, जो प्रायोगिक प्रयास है, इस पर हम अविरल रहेंगे, हम अटल रहेंगे, तो your efforts will certainly and undeniably end on a positive note. Okay? So to sum up, or to be succinct, or to be clear and precise, what I want to try making you think about is that if you follow the process of writing while you are listening, I'm sure you will get there in the end. Get there in the end. Get there का मतलब है to achieve your goal or to reach your destination. Okay? It's quite hard for me to believe that you are exasperated. You are clueless about the language. You are hopeless at English. ये मानना मेरे लिए बहुत ही कठिन है कि आप सब कुछ छोड़ चुके हो, है ना? आपके पास कोई आशा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है. आप क्या करो या क्या ना करो इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है. ये मैं मानने के लिए राजी नहीं हूं. I can't think of making you feel confident about how indispensable it is for you to be in full possession of your faculties, because it's my unflinching belief that you are in full possession of your faculties. मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास जो भी हुनर है, जो गुण है, वो आपके पास भर भर के हैं. अब आप कहेंगे कि आपको कैसे मालूम पड़ा कि सब कुछ, सब गुण हुनर हमारे पास भर भर के हैं? तो इसका सरल सा, एक सहज सा जवाब ये है कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, किसी से वार्तालाप कर सकते हैं, यानी आप पढ़ सकते हैं, आप सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं. तो सब कुछ गुण हुनर जो भी है, जो भी चाहिए, वो आपके पास है. And I, in this case, don't think there's much reason or why you need to be fearful about the language of English. Why you need to be so indifferent to the language of English.
इंडिफरेंट का मतलब है उदासीन, चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अक्सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये होकर ही रहेगा। तो बस सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए और अपने अंदर झांकिए और देखने की प्रयास कीजिए कि कौन सी वो जगह है जिस पर हमें काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस आशा के साथ कि you are not going to get vanished midway through the video. Rather, make sure you'll be watching the video till the end. चलिए बिना देर किए, अब आप बहुत सारे लोग इस तरह से भी सोच सकते हैं कि देर तो हो ही चुका है, तो चलिए फिर भी बिना देर किए चलते हैं। Without any further delay, let's get straight to the title first, uh, at the top of the board. How is it possible to become confident in the language of English? It's not just a question, it's a problem. It's a genuine problem that we need to be careful about, that we need to be working on, uh, that we need to take into a serious consideration of understanding. तो चलिए अब एक 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 बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि ये जो विषय है, ये आपकी जो प्लेटफॉर्म है ना, जो स्कैफोल्डिंग है, जो फील्ड है, your field of activity will need to be, not just needs to be, will need to be leveled, will need to be repaired or maintained, will need to be solidified. तो जो ग्राउंड लेवल है उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, उसको लेवल करना पड़ेगा। फिर आप पा गिन गिन कर चलो, उसके ऊपर दौड़ लगाओ, जो चाहे करो, है ना। तो ये जो लेवल को लेवल करने की जो बात है ग्राउंड को, वो इस विषय पर निर्भरशील है, मेरा ऐसा मानना है कि बस हमें पढ़ना नहीं है, बस हमें लिखना नहीं है, हमको हमारे अंदर झांकने की ज़रूरत है और कुछ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इनर ड्राइव, ऐसे वो क्वालिटीज़ हैं, ऐसे वो गुण हैं, जो हुनर हैं, जो हमारे पास होना चाहिए। फिर हम पढ़ाई भी कर लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, तर्क वितर्क भी कर लेंगे, किसी से गंभीरता से चर्चा भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, है ना। लेकिन जिस ट्रैक के ऊपर हम दौड़ लगाने वाले हैं, उसको पहले लेवल करना चाहिए, उसको सॉलिडिफाई करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। The first word on the list is sensitive, sensitive, संवेदनशील। देखिए ना, जानबूझकर मैंने बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो जिसको इस बोर्ड पर मैंने नहीं लिखा। तो उद्देश्य मेरा एक ही है, बहुत ही सरल है कि I'm just going to tell about all this and I want you all to pay your undivided attention to all the words that I'm going to use in constructing sentences in English down and put them down in your exercise book. आप वो लिख लीजिए जो भी मैं कहूँगा। तो जानबूझकर मैंने वो सब छोड़ दिया है क्योंकि I want you to make the best use of the time you have. I want you to get yourselves involved into a course of activity. और ये होना भी चाहिए।
हम बस काम नहीं करेंगे, उस काम में हम पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड रहेंगे, तब जाकर काम बनेगा। अब आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि आप बहुत दिन ऐसे भी पढ़ रहे होंगे कि हम पढ़ तो रहे हैं, वक्त भी जा रहा है, पेज भी शायद हम इधर उधर कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि अनडिवाइडेड अटेंशन, ये बहुत ही बड़ी बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अनडिवाइडेड अटेंशन, बस अटेंशन नहीं है, अनडिवाइडेड अटेंशन देने की ज़रूरत है। और जब तक आप ये काम पर सिद्ध साबित नहीं हो जाते, आप बहुत ही सक्षम प्रमाणित नहीं हो जाते, तब क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसके बारे में अच्छा और सकारात्मक कुछ आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो इस बात पर आपको बहुत ही गंभीरता से सोच विचार रखने की ज़रूरत है और उसके ऊपर काम करने की भी ज़रूरत है। तो चलिए, लेट्स try to find out what the word sensitive means in English. Uh, careful of and able to uh, understand other people and their opinions or the way they think, okay, or other people's feelings, ठीक है ना? किस तरह से आपको जो दूसरे लोग जिस तरह से सोच विचार रखते हैं, जिस तरह से समझते हैं, जिस तरह से वो अपने मत प्रकट करते हैं, उस विषय पर बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही अच्छा सोच विचार के साथ एक भावना, एक एक सटीक सिद्धांत लेने की जो सक्षमता है, वो है सेंसिटिव, संवेदनशील, है ना? चलिए, एग्जाम्पल सेंटेंस, हर एक शब्द ज़रूरी है। और मैं कभी भी एक सेंटेंस को अ सेंटेंस नहीं कहता, मैं कहता हूँ अ स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। हाँ, तो और इस स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर बहुत सारे शब्द होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस, ना जाने क्या क्या होते हैं। तो ये बस एक सेंटेंस नहीं है, द स्ट्रक्चरल फॉर्म, इट्स अ स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। तो द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, चलिए देखते हैं। Being sensitive to other people's feelings, it's such a quality, it's not quality, quality, it's such a quality of the inner self that can neither be done by training nor can it be inherited, but can only be felt, developed, and done by the by the invincible force of intrinsic motivation. So, it's a long sentence, so I repeat the sentence once more. Being sensitive to other people's feelings is such a quality of the inner self that can neither be done by training nor can it be inherited, but can only be felt, developed, and done by the invincible force of intrinsic motivation. बहुत ही सोच समझ के साथ लिखा हुआ एक सेंटेंस। बीइंग सेंसिटिव के मतलब है सेंसिटिव होना, सेंसिटिव होना। बीइंग सेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग्स, जिस तरह से लोग सोचते हैं, सोच विचार करते हैं और अपना मत प्रकट करते हैं, वो बहुत ही, वो सब फीलिंग्स के अंदर आते हैं। इट्स सच अ क्वालिटी ऑफ द इनर सेल्फ, वो अपने अंदर बसता हुआ एक एक आंतरिक विषय है। दैट कैन नीदर बी डन बाई ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के ज़रिए आप कुछ कर नहीं सकते, नॉर कैन इट बी इनहेरिटेड, मतलब वंश परंपरा के हिसाब से आपके हाथ में ये आएगा सोच समझ, ऐसा भी कुछ नहीं है। बट कैन ओनली बी फेल्ट, जिसे आप
अनुभव कर सकते हैं, developed and done by the invincible force of intrinsic motivation. Invincible, अपराजय, है ना, जिसको आप पराजित नहीं कर सकते, इतना इतना कठोर है वो। इनविंसिबल फोर्स, एक प्रवाह, एक गति, एक सक्षमता of intrinsic motivation. Intrinsic मतलब आंतरिक, और motivation का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो ये जो अपने आप को मोटिवेट करने की जो कला है, जो गुण है, जो हुनर है, ये आप ट्रेनिंग के जरिए, आप वंश परंपरा की जरिए आप तक आ नहीं सकता, है ना। तो इट्स अ क्वालिटी ऑफ द इनर सेल्फ, अंदर की एक गुण है, अनुभूति का एक प्रवाल, एक एक प्रकाश है, अनुभव का एक प्रभाव है, अनुभूति का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो हम बस उसे हम अनुभव कर सकते हैं, उसको अंदर ही अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। और क्योंकि वो एक इनविंसिबल फोर्स, अच्छे लोग कभी बुरा नहीं होता है, अच्छे के अंदर अच्छा ही सारी जिंदगी भर रहता है। अगर आप देखेंगे कि कोई अपने जीवन काल में कुछ खराब कुछ कर दिया, काम कर दिया, लेकिन वो पहले से इस तरह से जाना जाता था कि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, तो वो अच्छे के अंदर वो गुण था, जिस गुण के चलते हुए वो इस तरह के काम किया। तो ऐसा नहीं है कि वो अच्छा था, है ना। चलिए, let's take a look at the second sentence on the list and try to find out what it means. ये है committed, 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 वचनबद्ध, समर्पित। इसका मतलब क्या है? Believing or willing strongly to give your time and energy to something. किसी विषय पर आपकी जो समय है, आपकी जो एनर्जी है, मतलब कुछ काम करने के लिए जो सक्षमता की जो ज़रूरत होता है, वो आप जब किसी विषय पर दे रहे हो अपनी समय एवं सक्षमता, कार्य करने की जो सक्षमता, और बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, तो वो है कमिटेड, कमिटेड। देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के इट्स अ सीजन ऑफ विंटर आफ्टर ऑल। He's a committed heart to the cause of studying and transforming his life for the good of his future. I repeat, he's a committed heart to the cause of studying and transforming his life for the good of his future. वो अपने भविष्य को सुधारने के लिए और उसको अच्छा करने के लिए वो एक वचनबद्ध है अपने आप से, पढ़ने लिखने के लिए और अपने जो जीवन है उसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक सकारात्मक परिवर्तन ले आने के लिए, फॉर द गुड ऑफ हिज फ्यूचर, उसके अच्छे भविष्य के लिए। ठीक है, अ कमिटेड हार्ट। मुझे यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स कहना चाहिए था। सेंसिटिव, सेंसिटिव, चलिए सेंसिटिव को लेकर एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ही इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, वो आप लिख लीजिए, ही इज सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। और एक सेंटेंस हो सकता है कि आई एम, truly I am,
I am sensitive to the serious problem of how a great number of students, especially from remote village areas, do not feel confident about the language of English properly. Properly. It's not properly, it's properly. Properly. चलिए इसका फोनीम टर्म देख लेते हैं. Properly. Proper. Proper. है ना? Proper. ये जो फोनीम टर्म है, इसको अगर हम एक शब्द के अंदर रख देते हैं इस साउंड को, तो ऐसा होता है got, 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 or sound, or. तो proper, proper, proper. तो properly, properly. ये हो गया तीसरा एग्जाम्पल सेंटेंस. अब यहाँ चले आते हैं. तो ये हो गया एडजेक्टिव के हिसाब से ये सेंटेंस committed heart. committed heart. चलिए इस सेंटेंस को देखते हैं. यहाँ कमिट को हमने वर्ब के हिसाब से रखा है, ठीक है ना? कमिट को वर्ब के हिसाब से रखा है. द स्टूडेंट इज कमिटेड टू डूइंग वेल इन द एग्जाम. इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए. बहुत ही एक महत्वपूर्ण ढांचा है एक वाक्य का. देखिए, द स्टूडेंट इज कमिटेड टू डूइंग वेल इन द एग्जाम. एक बहुत ही अनोखा एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है. बस आपको यही जानना है कि in order to show the initiation of action, ing is added to the principal verb. Okay, giving the complete sense of the sentence affords of initiation of action. काम करने की जो प्रयास है, जो प्रबलता है, उसको दिखाने के लिए ये ing फॉर्म का एडिशन होता है. लेकिन इसका जो अर्थ है द स्टूडेंट इज कमिटेड टू डूइंग वेल इन द एग्जाम, ठीक है, इसको आप देख लीजिए और एक सेंटेंस को आप लिख लीजिए. थोड़ा बहुत जो सिमिलर होगा इससे, इस सेंटेंस से लिख लीजिए. द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर कमिटेड टू स्टडी वेल थ्रू आउट द होल ईयर. आई रिपीट, द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर कमिटेड टू स्टडी वेल throughout the whole year. है ना? क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वचनबद्ध हैं इस विषय से कि वो पूरे साल भर बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, है ना? तो उस सेंटेंस के साथ इसका भिन्नता क्या है, किस तरह से ये दो सेंटेंस भिन्न है? जिस तरह से ये स्ट्रक्चर को लिखा गया है, and by the way, this is not the only important structural form of the sentence that I want you to draw your attention to. There are several other ways. For example, the crimes or the criminal activities are generally committed by criminals. Committed by criminals. So this is not the only essential form of the sentence structure, लेकिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल फॉर्म है. लेकिन इसका मतलब क्या है, किस तरह से ये अपना मतलब अर्थ प्रकाश कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं? वो ये है, द स्टूडेंट इज कमिटेड टू डूइंग वेल इन द एग्जाम. ये बात है कि either the exam is on or the exam is going to be celebrated or to be organized or to be held in just a few days to come. हो सकता है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, एग्ज़ाम के दौरान स्टूडेंट इस तरह के कमिटमेंट किया है कि मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करूँगा. अब ये जो कहने की जो तरीका है, ये एग्ज़ाम के दौरान हो रहा है या the exam is going to be celebrated or to be held in just a few days to come.
2-4 दिन के अंदर वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो इनिशिएशन ऑफ एक्शन है, ये एग्ज़ाम के दौरान या इससे थोड़ी दिन पहले की बात हो सकते हैं, क्योंकि आप पूरे साल भर कमिटेड नहीं हो सकते इस इनिशिएशन ऑफ एक्शन के साथ कि पूरे साल भर मैं अच्छा करूँगा। बहुत सारे दिन ऐसे आ सकते हैं कि आपका बुखार हो जाए और आप पढ़ाई ना कर सकें, है ना? कोई दुर्घटना घट जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तो उस दौरान आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते। तो पूरे साल भर के लिए हम कमिटेड नहीं हो सकते, लेकिन जो इवेंट चल रहा है या जो आने वाले हैं, वहाँ हम अच्छे परफॉर्म के लिए अपने आप को कमिटेड कर सकते हैं, है ना? तो वहाँ थोड़ा बहुत एक ही मतलब था कि द स्टूडेंट्स इन द क्लास, जो आपने शायद लिखा, द स्टूडेंट्स इन द क्लास आर कमिटेड टू स्टडी वेल थ्रू आउट द होल ईयर। तो वहाँ भी होल ईयर का मतलब था और कमिटमेंट भी यही है ना? लेकिन वहाँ जो इनिशिएशन ऑफ एक्शन यहाँ है, वो वहाँ नहीं है। तो इट वाज जस्ट पॉजिटिव शॉर्ट ऑफ स्टेटमेंट जिसको हमने लिखा है, कहा है, बस यही सही है ना? तो ये दोनों जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं, इनके अंदर एक पॉजिटिव भिन्नता है ना? एक सकारात्मक भिन्नता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ही इज ए कमिटेड सोशलिस्ट, ही इज ए कमिटेड कम्युनिस्ट, इस तरह के सेंटेंस हम कर सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।